right? How to write asynchronous code using timer function, we are pretty clear. Then Yes, sir. how it executes, why it executes at the end also I have explained, because it was initially when browser read it, then it will store in message queue rather than execute in call stack, right? Then after call stack getting free, the event loop is going to fetch all this method asynchronous code, not method, asynchronous code instruction from message queue to call stack for execution, right? So खाली timer function नहीं होता, also there are some other DOM API and geolocation API, these are also asynchronous code. And all API those who are calling from server using asynchronous call, might be Ajax or fetch, whatever you can use. I will explain the Ajax later on. Ajax सुना है आप लोगों ने? So Ajax is also asynchronous call, right? DOM API, navigation, geolocation, navigator or geolocation API. Geolocation API is also asynchronous. So asynchronous call कैसे execute होता है? We understand how to write asynchronous code, how to make a file asynchronous, and some bunch of code inside a file to asynchronous. We understand. Now we will learn how to handle asynchronous code. अब asynchronous code तो लिख तो दिए, वो asynchronous हो गया, और इसका एग्जीक्यूशन भी पता चल गया कि कैसे सबसे लास्ट होता है, क्यों होता है, राइट? अब उसको हैंडल कैसे करेंगे, राइट? तो टाइमर फंक्शन जो ये बता चुका हूं मैंने, जो सेट टाइम आउट के अंदर अपने कॉल बैक फंक्शन यूज करते हैं. स्टिल आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन फॉर मोर बेटर क्लैरिटी. Okay, let me open the browser. My screen is visible, right? Yes, sir. Oh, shit. Now I cannot refresh also. So I am refreshing it. You can see it will not allow to refresh. जैसे complete हुआ हो उसके बाद जाके मेरा जो save किया हुआ call हुआ. Okay. So let me explain once again. This is an arrow function, anonymous function again, but anonymous function you can write through different way. Like this is normal anonymous function, like function, then function body. But here I have written as an arrow function, anonymous function is an arrow function, right? So greet is an anonymous function, and show alert is another anonymous function, right? So मैं greet function को यहाँ डायरेक्ट कॉल किया, एंड शो अलर्ट को मैंने टाइम आउट फंक्शन के अंदर रखा. सो टाइम आउट फंक्शन, सेट टाइम आउट फंक्शन क्या क्या एक्सेप्ट करता है? एक कॉलबैक फंक्शन, first parameter will be a callback function, and this callback function might be a direct function like this, okay, or might be an arrow function, right? So the timer function might be an arrow function, or might be an anonymous function, or might be a named function, or anonymous function with literal notation, sorry, expression, as an expression. तो यहाँ पे क्या, वो फंक्शन में यहाँ पे एज एन कॉलबैक पास किया, राइट? एंड इट इज anonymous function because variable में स्टोर किया. function as an expression is also an anonymous function. तो ये function मैंने यहाँ पे पास किया as an callback, and second parameter is the timer, after how much time or how long, after how long this function will execute, right? तो मैंने कोई भी पास करूंगा तो ये 2 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगा, बट ये फंक्शन भले लास्ट में लिखा हुआ, सेट टाइमर फंक्शन के बाद लिखा हुआ, बट
show alert will execute at the end. ये either after 2 seconds you can write or might be 0, but always this is asynchronous, so it will execute at the end. जो मैंने कल बताया था रिपीट कर देते हैं. danger execute at the end, but hello ck execute first, right? The first greet function is called rather than show alert. Clear? ये क्यों होता है ये पता चल गया कैसे वो ये एसिंक्रोनस कोड है, क्योंकि एसिंक्रोनसली मैं हैंडल कर रहा हूँ. तो ये शो अलर्ट कहाँ पे जाएगा, जैसे मैंने बताया था अपने डायग्राम में, शो अलर्ट इधर मैसेज क्यू में आ जाता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता, राइट? फिर जैसे वो कॉल स्टैक फ्री हो जाता है, ग्रिड की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, देन इवेंट लूप क्या करता है, शो अलर्ट को मैसेज क्यू से यहाँ पर कॉल स्टैक में ले जाता है और वो क्या करता है, एग्जीक्यूट होता है. क्लियर? अब एसिंक्रोनस कॉल को हम हैंडल कैसे करते हैं, डिफरेंट वे, देयर आर डिफरेंट वे टू हैंडलिंग द एसिंक्रोनस कोड. Let's see one example. So to execute, to handle asynchronous code, there are different way. So first way is callback. Remember callback. Second way is promise. Third way is async and await. Async await के थ्रू अपना asynchronous code handle कर सकते हैं. Clear? So now what does this code do? ये कोड करता क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये जो मैंने फंक्शन लिखा ना, क्वेरी सिलेक्टर, इट इज एंड डोम एपीआई. रिमेंबर डोम एपीआई मतलब डोम एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, टारगेट करने के लिए हम ये डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर यूज करते हैं. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी भी यूज कर सकते हैं. जो बटन है यहाँ पे, जो बटन टैग कहाँ पे होगा, बटन टैग ये बटन टैग को टारगेट कर रहा है. इसका मतलब ये बटन टैग को टारगेट कर रहा है. सपोज इसमें मैंने आईडी डाल दूंगा, कुछ भी आईडी का नाम कुछ भी लिख दूंगा, माई बटन. ठीक है, तो आई कैन ऑल्सो एक्सेस दिस डोम एलिमेंट यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी. देयर इज अनदर मेथड गेट एलिमेंट बाय आईडी, राइट? दिस इज ऑल्सो इन डोम मेथड, डोम मैनिपुलेशन मेथड. तो यहाँ पे माई, सॉरी, यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, माई बटन. तो ये क्या करता है, ये पर्टिकुलर डोम एलिमेंट को पहले टारगेट करता है. सो लेट्स रिवर्ट बैक टू क्वेरी सिलेक्टर. इसके बाद इसके ऊपर मुझे कोई इवेंट फायर करना. इवेंट मैंने बताया नहीं, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, बट इतना ही ध्यान रखना कि एड इवेंट लिसनर विल वर्क ऑन दिस बटन ऑब्जेक्ट. ये डोम ऑब्जेक्ट है. जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट था ना, जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिटरल नोटेशन में से करते हैं, वो तुम्हारा कस्टम ऑब्जेक्ट है. बट जो डॉक्यूमेंट को हम सिलेक्ट करते हैं तब ये क्या करता है, ये डोम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोम डोम ऑब्जेक्ट. डोम का फुल फॉर्म क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट ये है, राइट? तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ये मेथड में कॉल कर रहा हूँ, एड इवेंट लिसनर. सो एड इवेंट लिसनर किसके लिए यूज होता है, इवेंट को बाइंड करने के लिए. इवेंट कौन कौन सी इवेंट है, जैसे माउस क्लिक, की ऑन, की प्रेस, की जो प्रेस करते हैं वो भी एक इवेंट है. सो ब्राउजर के ऊपर माउस ओवर है, वो एक इवेंट है. तो ये इवेंट बाइंड करने के लिए एड इवेंट लिसनर हम यूज करते हैं, और ये इवेंट का नाम है. और ये इवेंट जब ट्रिगर होगा तब कौन सा मेथड कॉल करना है यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट? तो ये अभी ज्यादा फोकस नहीं करना, इवेंट में बताऊंगा. ठीक है, अभी हमारा मेन फोकस क्या है, क्या है मेन फोकस है, ये जो एसिंक्रोनस कोड लिखा मैंने, ये मैंने बोला था नेविगेटर जियो लोकेशन और गेट पोजीशन, गेट करंट पोजीशन. ये क्या करता है, तुम्हारा जो करंट पोजीशन है ना, लोकेशन का लेट लॉन्ग ये गेट करता है, राइट? तो ये जो मेथड है ये एसिंक्रोनस मेथड है, राइट? तो ये मेथड जो डेटा एक्सेप्ट करता है, डेटा मिलता है, तब ये उसको कैच करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉल बैक. ये मेथड के अंदर देखो एक एक मेथड और रखा हुआ है, एनोनिमस फंक्शन, जो यहाँ से चालू होता है, यहाँ पे क्लोज होता है. और यहाँ दूसरा कॉल बैक रखा हुआ है जो एरर कैच करने के लिए. सो देयर आर टू मेथड्स, यू कैन सी
दिस इज वन मेथड, दिस इज अनदर मेथड, राइट। तो ये दोनों क्या है, कॉलबैक मेथड। कॉलबैक तो मैंने पहले से बताया, कॉलबैक कहाँ पे यूज होता है कि एक फंक्शन की पैरामीटर जैसे एज ए पैरामीटर जब यूज करते हैं उसको कॉलबैक बोलते हैं, राइट। तो ये जैसे ये वाला मेथड कॉल होता है, ये नेविगेटर करके एक ऑब्जेक्ट है। जैसे तुम्हारा जावास्क्रिप्ट, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट कहाँ पे रन होता है ना, विंडो ऑब्जेक्ट के ऊपर रन होता है, विंडो डॉट तुम्हारा मेथड नेम, राइट। ये भी विंडो के ऊपर ही रन होता है, बट विंडो ओमिट रखते हैं हम, विंडो डॉट नेविगेटर डॉट जियोलोकेटर डॉट गेट करंट पोजीशन, ये मेथड उसके अंदर लिखा हुआ है, जो ब्राउजर के अंदर लिखा हुआ है। तुमको उसका डेफिनेशन नहीं लिखना है, खाली यूज करना है। जैसे तुम कंसोल लिखते हो, कंसोल डॉट लॉग, तो कंसोल एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर लॉग एक मेथड है जो कंसोल के अंदर प्रिंट करने के लिए यूज होता है। तो लॉग मेथड का डेफिनेशन तुम डिफाइन नहीं कर रहे हो, राइट। तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ऐसे। ये करंट पोजीशन इज आल्सो a method which is defined by browser, you don't have to worry about it। बट ये करता क्या है, ये जो मेथड है get current position which is written inside the geolocation object and inside navigator, इसके आगे विंडो लगा सकते हैं हम, जैसे सब में विंडोज होता है, विंडो डॉट नेविगेटर डॉट जियोलोकेशन, स्टिल इट विल वर्क। जैसे मैंने बताया था, ये फंक्शन कॉल करते हैं हम तो इसके आगे विंडो बाय डिफॉल्ट होता है, बट विंडो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ब्राउजर में विंडो होता है और सर्वर में होता है ग्लोबल, बट एक कॉमन होता है जो ग्लोबल दिस, जो दोनों में चलता है, ठीक है, उसमें फोकस नहीं करते, राइट। तो इसमें जो भी रेस्पॉन्स आएगा उसको कैच कैसे करेंगे हम ना, ये कॉलबैक के थ्रू एक्सेस करेंगे उसको, राइट, क्लियर। तो ये कॉलबैक में क्या आता है, देखो ये कॉलबैक में, ये कॉलबैक के अंदर बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर होता है कॉलबैक मेथड में, जो जो रेस्पॉन्स आता है उसको गेट करता है, और रेस्पॉन्स सपोज एरर आता है तो और एक मेथड है कॉलबैक, सेकंड कॉलबैक मेथड, जो एरर कैच करता है। तो एसिंक्रोनस कोड, एसिंक्रोनस एपीआई जब हम यूज करते हैं, आगे और डिटेल बताऊंगा, तब वहां पे कॉलबैक जो है, जो फर्स्ट कॉलबैक ऑलवेज क्या सक्सेस के लिए यूज होता है और एरर के लिए दूसरा कॉलबैक यूज होता है, बट कॉलबैक ही डेटा गेट करता है, राइट। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो मेथड आया उसको मैंने प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर, आइदर आई कैन यूज दिस टाइमर फंक्शन और माइट बी आई कैन डायरेक्टली प्रिंट इट कॉलबैक, क्लियर। सेम यहाँ पे एरर भी, मैं डायरेक्ट एरर आता तो एरर प्रिंट कर सकता हूँ, बट वो जो फंक्शन बनाया मैं ट्रैक यूजर हैंडलर, ट्रैक यूजर हैंडलर मेथड इज कॉल्ड व्हेनेवर आई क्लिक ऑन द बटन, ठीक है। इसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, खाली ये कब कॉल होता है, राइट। इसको मैं निकाल देता हूँ, छोड़ो ना, आप कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। मैं डायरेक्ट कॉल करता हूँ उसको, ये मेथड को, जैसे मैं कॉल करूंगा आपको ब्राउजर में पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ योर लोकेशन, आप यस बोलोगे, ठीक है। तो आपको जियो लोकेशन की लेट लॉग मिल जाता है, पूरा ऑब्जेक्ट मिलता है, देखो यहाँ पर, राइट। जियो लोकेशन का पूरा ऑब्जेक्ट मिलता है, यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाता है। अच्छा, परमिशन डिनाइड है, एरर आया, सॉरी। ये एरर आता है, क्यों एरर आता है, ये गेटिंग पोजीशन जाता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं जब ये फंक्शन कॉल करता हूँ और ये वाला प्रिंट करता हूँ, टिल देन ये पहले कॉल हो जाता है, जैसे ऊपर दिख रहा है आपको, बट ये सक्सेस मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, एरर मैसेज क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक करके रखता है यहाँ पर। जब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये ब्लॉक कर दिया, जब तक अलाउ नहीं करूंगा तब तक नहीं करता है, राइट। इसलिए हम बटन क्लिक में रखा हुआ है यहाँ पर, ओके। अब देखना, अब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन कॉल हुआ, एरर क्यों आ रहा है, वेट,
अलाउ नहीं है, अब आएगा। आया। अब ये ऐसे में भी ऐसे भी काम करेगा वो। अभी बटन निकाल देते हैं हम, डायरेक्ट कॉल करेंगे तो भी आ जाएगा। ओके, अब मैं इसको कॉल किया। अब देखो थोड़ी देर बाद ये रेस्पॉन्स आता है हमारे पास। आया, जियो लोकेशन की कोऑर्डिनेट आया यहाँ पे सक्सेस में, कि कोड्स के अंदर देखोगे आप लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मिल रहा है आपको। अल्टीट्यूड नहीं मिलता है इसमें, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मिल रहा है आपको, राइट। सपोज मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया और उसको ब्लॉक किया, मैंने अलाउ नहीं किया, तो एरर दिखाएगा। देखो जियो लोकेशन पोजीशन एरर। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये कॉल बैक से आ रहा है, राइट। तो इसका जो भी रेस्पॉन्स आता है उसको हम कैसे कैच करते हैं? थ्रू कॉल बैक। आगे और भी इजी वे आएगा, मैं बताऊंगा। तो कॉल बैक में हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल बैक इज फॉर सक्सेस वन एंड सेकेंड वन इज फॉर रिजेक्शन, एरर, सॉरी। क्लियर? तो यहाँ पे खाली सिंपली इतना याद रखो, कोई भी एसिंक्रोनस कोड तुम यूज कर रहे हो, जैसे एसिंक्रोनस एपीआई यूज किया, उसका जो रेस्पॉन्स आता है, या एसिंक्रोनस कोड कुछ भी लिख रहे हो, उसका जो भी डेटा हमको मिलता है उसको हम कैच करने के लिए कॉल बैक यूज करते हैं। यहाँ पे एनोनिमस कॉल बैक यूज किया, यहाँ पे दूसरा कॉल बैक, ठीक है। बट ये जो करंट पोजीशन, ये दो कॉल बैक एक्सेप्ट करता है, फर्स्ट वन इज फॉर सक्सेस, सेकेंड वन इज फॉर एरर। ऐसे सब में नहीं होता, बट स्पेशली ये यूज करता है। जब तुम्हारा कोड होगा, तुम जिस तरीके से हैंडल करोगे वो इस तरीके से काम करेगा, राइट। सो कैसे कॉल बैक यूज करते हैं आपको पता चल गया। अभी नेक्स्ट जाते हैं प्रॉमिस। अभी कॉलबैक के ऊपर आप कोई डाउट है तो मुझे बताओ। मतलब ऑलवेज क्या होता है, कभी भी तुम एसिंक्रोनस कोड यूज करते हो, कॉल यूज करते हो, तो उस टाइम में हम कॉलबैक के थ्रू उसको हैंडल करते हैं। क्लियर? जैसे सेट टाइम आउट में मैं कॉलबैक यहाँ पे यूज करता था, ऑलवेज ओनली वन कॉलबैक, राइट। बट कुछ फंक्शन में दो कॉलबैक होता है, जो फर्स्ट इज फॉर सक्सेस एंड एरर, बिकॉज ये एसिंक्रोनसली एपीआई कॉल करता है ब्राउजर के अंदर और वो लेट लॉन्ग लेके आता है। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes. ठीक है। ये पूरा एक ऑब्जेक्ट, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कोड्स के अंदर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आता है, राइट। तो आप सपोज कोड COORD आपको एक पूरा एक्सेस करना है, तो पोजीशन डेटा डॉट COO कोड्स डॉट लैटिट्यूड, तो आपको लैटिट्यूड प्रिंट करेगा। देखो दिखाता हूँ मैं आपको। अलाउ किया, देखो अभी वेट किया, आपको नहीं पता ही कब तक आएगा ये डेटा। आया खाली 23.23 डिग्री नॉर्थ। अपना लैटिट्यूड क्या है? 23 डिग्री नॉर्थ। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है? हाँ, 75 डिग्री ईस्ट, राइट। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता चलता है ना तुम लोगों को? मैप तो पता ही होगा आपको, गूगल मैप, यस सर। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम भी ये पूरा जो डेटा आता है उसको एक्सेस कर सकते हैं हम डॉट डॉट करके, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जैसा नहीं आता है हमारे पास, राइट। तो कोई भी डेटा आता है तो आपने इसको एक्सेस कैसे करते हैं? इस तरीके से। अभी सपोज मुझे क्या करना है, सपोज ये जो कोऑर्डिनेट आया, मुझे सपोज बाहर कहीं पे यूज करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करूँ? जैसे गेटिंग पोजीशन, ओके, इसके जगह में लिखूंगा, जैसे ये लिखूंगा कि माई पोजीशन इज, देन मैं इसको क्या करूंगा? कॉन्काटिनेट करूंगा वेरिएबल के साथ। कौन सी वेरिएबल? पोजीशन डेटा डॉट लैटिट्यूड। बाहर मुझे यूज करना है, एक्सेस करना है, तो किस तरीके से करूंगा मैं? देखो ये नहीं मिलता, ये बोला ना एक्सपेक्टेड डॉट पोज डेटा। अभी देखो ये बाहर नहीं मिलेगा मुझे। अरे यार,
अरे बाबा पता है मुझे, तो करने तो दे मुझे। पोजीशन एज एक कॉन्कार्डिनेशन में बहुत प्रॉब्लम। ओके, तो ये बोल क्या रहा है कि क्या बोल रहा है कि पोजीशन डॉट लैटिट्यूड यहाँ प्रिंट होना चाहिए, बट यहाँ प्रिंट नहीं हो पाएगा। क्यों? देखो ये एरर दिखा दिया, पोजीशन डेटा उसको नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये कोड में जो रिटर्न होता है, जब रिटर्न होता है तब तक तो ये प्रिंट हो जाता है, ये आने से पहले ये प्रिंट हो जाता है। ये सुनो, Yes, sir. तो हम वेट कैसे करेंगे? तो सपोज मैं इसको सेम उठा के मैं कॉल बैक के अंदर लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा तो मुझे अच्छी तरह से प्रिंट करेगा वो, राइट। तो इसमें क्या होता है, रेस्पॉन्स जो भी आता है उसको उसको कैच करके, सपोज इफ यू वांट टू यूज इट देन यू हैव टू यूज कॉल बैक। यू कैन राइट वट एवर द कोड यू वांट टू राइट इनसाइड द कॉल बैक, इट विल बी एक्सेसिबल। मीन्स जो भी रेस्पॉन्स आएगा एसिंक्रोनस कोड के थ्रू, तो ये यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं कॉल बैक के अंदर से, राइट। वेट, अभी अभी क्या है कि कब रेस्पॉन्स कब आएगा उसमें हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जब भी आएगा तब वो प्रिंट होगा। प्रिंट हुआ, ये थोड़ा टाइम लगा रेस्पॉन्स आने में, बट वो ऑटोमेटिक प्रिंट हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? अभी यहाँ पे मैं कहीं पे भी कुछ भी लिखूंगा, यहाँ पर ये फंक्शन और ये फंक्शन, तीन फंक्शन है, बट इसके बाद यहाँ पे मैंने वो कंसोल लिखा था, माई पोजिशन इज कुछ भी कंटिन्यू ऐसे लिख दिया मैंने, राइट। तो ये पहले प्रिंट हो जाता है। देखो ये क्लिक करने अलाउ करने के बाद वो जाता है रिक्वेस्ट, फिर रेस्पॉन्स आएगा, देखो, बट उससे पहले ये प्रिंट हो जाता है, राइट। हमको नहीं पता ये कब रेस्पॉन्स आएगा, तो जब अपने को ये उसका रेस्पॉन्स यूज करके दूसरा कुछ यूज करने वाले, वो रेस्पॉन्स को लेके दूसरा कुछ मैनिपुलेट करने वाले थे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसी के अंदर ही लिखना पड़ेगा, कॉल बैक के अंदर। तो कभी भी डिले होगा तो ये कॉल बैक तभी कॉल होता है जब ये सक्सेस हो जाता है, मतलब कंप्लीट होता है कॉल उसके बाद, राइट। और ये एसिंक्रोनस कोड कब कल कॉल होगा और कब कंप्लीट होगा उसका कोई लिमिट नहीं है कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड हम नहीं बता सकते, जैसे कल दिखाया था मैंने। क्योंकि जितने सारे सिंक्रोनस कोड सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ये कॉल जाएगा सर्वर में, फिर कब रेस्पॉन्स आएगा सर्वर में, सपोज बहुत सारा डेटा होगा, क्वेरी ऑप्टिमाइज नहीं होगा, एसक्यूएल क्वेरी जो भी आपने क्वेरी लिखते, तो हम नहीं बता सकते कि कब डेटा आएगा, राइट। तो हम यहाँ पे कोई टाइमिंग फिक्स नहीं कर सकते कि इसको समझ में ही बोलूंगा ये तब कॉल होगा जब ये रेस्पॉन्स आ जाएगा, बट हमको पता ही नहीं कब आएगा। ये ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ कॉल बैक। वी हैव टू राइट योर कोड इनसाइड द कॉल बैक, मीन्स दिस कॉल बैक विल कॉल व्हेन दिस रिक्वेस्ट इज कंप्लीट। यदि एसिंक्रोनस कोड जब कंप्लीट हो जाएगा तब हमारा कॉल बैक कॉल होता है, राइट। बट मुझे ये बाहर प्रिंट करना तो कैसे करूं मैं? इज देयर एनी वे? हाँ, यस। तो हमेशा इसमें प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताता हूं आपको। सपोज सपोज इसके अंदर एक डिफरेंस पता चला तुमको। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि अंदर अंदर जितने सारे अंदर तुम लिखोगे, लिखना चाहोगे, मतलब ये रेस्पॉन्स को यूज करके दूसरा और एक लिखना चाहते हो, फिर उसके अंदर और एक रेस्पॉन्स आएगा तो उसके एग्जीक्यूट करना चाहते हो तुम, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, हर बार कॉल बैक ही यूज करना पड़ेगा। कॉल बैक के अंदर और एक कॉल बैक, जैसे मैंने ये एसिंक्रोनस कॉल है, इसके अंदर और एक एसिंक्रोनस कॉल, जैसे मैं ये यूज किया। टाइमर फंक्शन क्या करता है, एसिंक्रोनस को कोड को एसिंक्रोनस कर देता है, राइट। तो जब इसको एसिंक्रोनस किया तो उसके अंदर और एक कॉल बैक आया मैंने, क्योंकि मैं बताया था कि आपको एसिंक्रोनस कोड को हैंडल करने के लिए हमको कॉल बैक यूज करना पड़ेगा, राइट। सो टाइमर फंक्शन, जैसे ये गेट करंट पोजीशन भी एसिंक्रोनस है, ये टाइमर फंक्शन भी तुम्हारे कोड को क्या करता है, एसिंक्रोनस कर देता है, राइट। तो मुझे क्या करना है, ये सेट टाइमर के अंदर ये कब प्रिंट होगा,
जब इसका रेस्पॉन्स आ जाएगा मेरे पास, ये सुनो, राइट। तो मैंने यहाँ पे देखो एक कॉल बैक बाहर है, इसके अंदर और एक टाइमर फंक्शन लिखा है, उसके अंदर और एक कॉल बैक है, फिर इसके अंदर और एक टाइमर फंक्शन या कुछ और एसिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट करना चाहूंगा, तो फिर क्या होगा, उसके अंदर और एक कॉल बैक लिखना पड़ेगा मुझे, ये सुनो। अंदर अंदर जितना मैंने उसका रेस्पॉन्स को यूज करना चाहूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल बैक कॉल बैक कॉल बैक के अंदर और एक कॉल बैक और कॉल बैक, उसके अंदर और कॉल बैक, ऐसे यूज करना पड़ेगा मुझे, ये सुनो। Yes. Yes, sir. तो इसको क्या बोलते हैं, कॉल बैक हेल, ये लिख रहा है ना कॉल बैक हेल। आप देख सकते हो बहुत सारे एसिंक्रोनस गूगल में देख सकते हो कॉल बैक हेल क्या है। कॉल बैक हेल क्या है, टू हैंडल मल्टीपल एसिंक्रोनस रेस्पॉन्स, to handle multiple asynchronous code, multiple asynchronous code. Most of the time we use callbacks inside a callback, again callback inside a callback. So it is a nested callback functions, which is very difficult to write and handle the code. बहुत प्रॉब्लम नहीं होता, अंदर अंदर कितना लिखोगे तुम, राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसका अल्टरनेट क्या है, प्रॉमिस, राइट। प्रॉमिस क्या करता है, तुमको रिटर्न, ये जैसे आपने बहुत सारे फंक्शन देखते थे एरर मैनिपुलेशन, वो क्या होता है, कुछ फंक्शन रिटर्न करता था, कुछ वैल्यू या कुछ एरर रिटर्न करता था, फिर उसको हम बाहर इसके एग्जैक्टली पैरेलली बाहर हम यहाँ पे यूज करते थे, राइट। अभी यहाँ पे किसी भी तरीके में ये डेटा में बाहर एक्सेस नहीं कर सकता है किसी भी हालत में अभी फिलहाल, क्योंकि हमको अंदर ही यूज करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ये सुनो। ये कॉलबैक के अंदर ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये कब रेस्पॉन्स आएगा हमको नहीं पता चलेगा, राइट। तो इसका सोल्यूशन क्या है, एक तो कॉलबैक हेल है, बहुत डिफिकल्ट मैनेज करना कॉलबैक के अंदर कॉलबैक, और मुझे इसका ये जो वैल्यू है बाहर कोई और फंक्शन के अंदर मुझे एज ए पैरामीटर पास करना है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू पास दिस एज ए पैरामीटर टू अनदर फंक्शन, ये जो पोजीशन आया मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरे फंक्शन के लिए इनपुट होगा, राइट। अब सपोज इसको भूल जाओ, सेट टाइम आउट भुला दो, राइट। ये गेट पोजीशन आया, बट मुझे क्या करना पड़ेगा, और एक फंक्शन बनाया जो क्या करता है, प्रिंट करता है, जैसे ये प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन बनाया मैंने, राइट। और ये फंक्शन में बाहर कहीं पे क्लियर लिखा हो, यहाँ पे कुछ फंक्शन बनाया, ठीक है, प्रिंट, और इसके अंदर मैं क्या किया, इसको रखा, तो वो प्रिंट करने के लिए रखा, ये फंक्शन बनाया मैंने, क्लियर। बट मुझे ये मिलेगा ही नहीं, ये प्रिंट फंक्शन कभी मिलेगा नहीं, मैं यहाँ पे कैसे कैसे मुझे मिलेगा, मुझे आइदर क्या करना पड़ेगा, ये पोजीशन डेटा यहाँ पे पास करना पड़ेगा, और ये प्रिंट फंक्शन का मुझे कॉल करना पड़ेगा, कहाँ पे, कहाँ पे करूंगा, ये कॉलबैक के अंदर, ये पोजीशन डेटा आएगा, फिर मैं पास करूंगा तो जाके ये कॉल होगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं हो पाएगा। अलाउ, अब आया, माय पोजीशन इज दिस, राइट। क्योंकि मुझे इसी के अंदर रखना पड़ा, मुझे सपोज बाहर ऐसे कहीं पे कॉल करूंगा, मैं इसको यहाँ से उठा के इधर कहीं पे कॉल करूंगा, इट विल नॉट वर्क। क्यों, देखो मैं बताता हूँ क्या होगा, एरर दिखाए, क्यों बोलेगा, ये डेटा कुछ है नहीं, पोजीशन डेटा करके कुछ मिल नहीं रहा, देखो मिल गया आपको एरर, दिस इज नॉट डिफाइंड, ऐसा कुछ पास ही नहीं है, ये कहाँ से आएगा पोजीशन डेटा। बट इसको कैसे हम यूजिंग प्रॉमिस हम कैसे कर सकते हैं, ये समझ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉमिस, ये बहुत बार हर हर इंटरव्यू में पूछेंगे आपको प्रॉमिस क्या है। टू अवॉइड कॉलबैक हेल हम क्या करेंगे, प्रॉमिस यूज करेंगे, राइट। Solution? यस, Sir, actually इससे भी हो सकता है ना, what is the difference between callback and callback hell? कॉलबैक हेल तो कॉलबैक के थ्रू ही होता है, डिफरेंस कुछ नहीं है। कॉलबैक हेल मतलब बहुत सारे कॉलबैक यूज करेंगे ना, तब कॉलबैक हेल बोलते हैं उसको। हेल मतलब Narak. नारक,
हम नहीं बोलते गो टू हेल, Yes, हाँ, sir. हाँ, इस तरीके से, मतलब इतना कॉल बैक उसके अंदर कॉल बैक, फिर उसके अंदर कॉल बैक, अंडरस्टैंड, हाँ, फिर तुम खुद कंफ्यूज हो जाए कि किसका कॉल बैक किसके अंदर है, कौन सा कोड किसके अंदर है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या है कि एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, कौन, जावास्क्रिप्ट एक प्रॉमिस करके कंस्ट्रक्टर फंक्शन या क्लास प्रोवाइड करता है, जिसको यूज करके हम प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। वो क्या रिटर्न करता है मैं आपको बताऊंगा। ये ओके, प्रॉमिस क्रिएट करने के लिए हमारा सिंटेक्स क्या है, ये प्रॉमिस करके कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, बट उसको एज ए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम प्रॉमिस आपकी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया था यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन, हम न्यू कीवर्ड यूज करके जैसे कैसे अपने ऑब्जेक्ट बनाते। सो इट इज सिमिलरली promise is an constructor function or might be a class. By using this promise class we can create an promise instance or object, and I am storing this in, जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम एक वेरिएबल में स्टोर करते थे obj equal to this or o equal to this, did you remember? Yes, sir. Similarly I am putting that object or instance in one variable. Okay, सो ये प्रॉमिस क्रिएट किया, जस्ट फॉरगेट अबाउट इनर थिंग, जब प्रॉमिस क्रिएट करेंगे तब ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है प्रॉमिस करके, राइट? इसके अंदर क्या है, प्रॉमिस also this promise method accept one callback method, and this callback method accept two parameter. First parameter is always used for success, second parameter is used for always for rejection. Means suppose आपका जो geolocation API, if I am considering the geolocation API, then if it is throwing an error means rejection, then it will come under reject function, right? Sorry, reject, inside reject parameter, and result के अंदर जो पास करेंगे हम वो हमेशा सक्सेस में आता है। तो ये क्या करता है, कॉलबैक इसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं होगा, मतलब अंदर अंदर कॉलबैक नहीं लिखने की जरूरत है। ये क्या करता है, रिटर्न करता है, सक्सेस होगा तो भी रिटर्न करेगा, एरर होगा तो भी रिटर्न करता है वो। जैसे हम एरे में नहीं वर्ड पढ़े थे, उसके अंदर कुछ नहीं है, वो बाहर एग्जीक्यूट करने के बाद रिटर्न करता है और वेरिएबल में स्टोर करता है। देन आई कैन यूज दिस प्रॉमिस एज एन ऑब्जेक्ट लेटर ऑन एवरीवेयर, जहां पे तुमको यूज करना है करने का, राइट? अभी ये प्रॉमिस के अंदर जो दो पैरामीटर दिख रहा है, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, जो चीज आप रिजॉल्व के अंदर पास करोगे इट विल एक्सेस इन सक्सेस, इन केस ऑफ सक्सेस और इन केस ऑफ, जैसे मैंने जियो लोकेशन एपीआई में बताया था दो कॉलबैक था, फर्स्ट कॉलबैक इज यूज्ड फॉर सक्सेस एंड सेकंड इज यूज्ड फॉर एरर, राइट? प्रॉमिस की केस में क्या होगा, जो भी चीज सक्सेस में है आपको ये रिजॉल्व के अंदर पास करना पड़ेगा, एंड जो भी चीज एरर के अंदर आप एरर करना दिखाना चाहते हो तो आपको रिजेक्ट के अंदर पास करना पड़ेगा, राइट? ऑलवेज ये रिमेम्बर, ये चीज याद रखना, राइट? तो मैंने क्या किया, बाय डिफॉल्ट इसमें रिजेक्ट ही पास कर रहा हूँ, क्योंकि ये जीरो क्या मतलब हमेशा यही, हाँ फॉल्स ही वैल्यू आएगा, तो ये एल्स में आएगा, राइट? तो ऑलवेज एरर ही पास कर रहा हूँ, राइट? अब ये ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो प्रॉमिस है उसके अंदर दो मेथड है, वन इज देन, अनदर इज कैच। रिमेंबर, देन किसके लिए कॉल करते हैं हम, देन के अंदर हम दो कॉल बैक यूज कर सकते हैं, वन इज फॉर सक्सेस, अनदर इज फॉर एरर, बट हम ऐसे नहीं करेंगे, एरर के लिए सेपरेट मेथड है कैच। देन सक्सेस के लिए यूज करेंगे, कैच एरर के लिए यूज करेंगे, राइट? वो ऑटोमेटिकली कैच के अंदर आ जाएगा एरर होगा तो। अब नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं बाय डिफॉल्ट ये रिजेक्ट ही रिटर्न करता हूँ, राइट? तो मैं प्रॉमिस के अंदर कुछ भी अभी प्रॉमिस कॉल करूंगा तो मुझे ये वाला कैच एरर प्रिंट करेगा। देखो आप क्या प्रिंट कर रहा है, ये कंसोल में एरर मैसेज ही प्रिंट कर रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, इसके अंदर जो पास किया। अभी मैं इसको 1 कर दूंगा तो क्या करेगा वो, सक्सेस मैसेज, सक्सेस मैसेज, बट वो कहाँ पे प्रिंट होगा, ये देन Dot से then. देन के अंदर कॉल होगा। सक्सेस। तो यहाँ पे एक चीज फिर से बता रहा हूँ, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, प्रॉमिस इज ए कंस्ट्रक्टर और क्लास, इसके अंदर ये जो प्रॉमिस जब हम क्रिएट करते हैं ये कॉलबैक एक्सेप्ट करता है। कॉलबैक के अंदर दो पैरामीटर होता है, एक रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, राइट? आर रख सकते हैं, RERS, RJ,
फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो यहाँ पे वही चीज लिखने का RE and RJ, ठीक है। स्टिल इट विल वर्क, डिड यू सी। तो इसका नाम रिजॉल्व रिजेक्ट रखना ऐसा कुछ नहीं है, बट फॉर आवर नेमिंग कन्वेंशन इट शुड बी रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। रिजॉल्व मतलब अपना जो भी ये वहां पे कोड लिखा वो रिजॉल्व हो गया, बट वो एरर नहीं दिया। और ये क्या कि एरर या रिजेक्ट जो भी कर सकते हो उसका नाम, राइट। तो मैं अभी रिजल्ट पास किया तो ये कहाँ पे कैच होगा, हमेशा यहाँ ध्यान रखना, देन में कैच होगा। तो देन एंड कैच, दीज आर ऑल्सो two methods, right? They are also क्या, callback function. एक्सेप्ट कॉलबैक। देन भी Yes. कॉलबैक एक्सेप्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है, और कैच भी एक कॉलबैक Catch भी. करता है, राइट। एंड वो एवरी कॉलबैक हैज इट्स वन पैरामीटर, ठीक है। अब सपोज मैं कैच यूज नहीं करूंगा तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा, यस इट विल वर्क। कैसे, मैं सपोज यहाँ पे एरर कॉलबैक यहाँ पे रखूंगा विथ कॉमा, यहाँ पे ऑफ कोर्स कॉमा विल बी हियर। तो देन के अंदर दो कॉलबैक पास किया, एक एरर और एक सक्सेस, और एक एरर के लिए दो कॉलबैक पास किया, यस और नो। Yes, sir. तो अभी मैं सपोज यहाँ पे एरर पास करूंगा तो कैच तो है नहीं, बट स्टिल इट विल डिस्प्ले ओवर हियर, राइट। ये कैच कर सकता है। तो सेकंड कॉलबैक फंक्शन देन दो कॉलबैक एक्सेप्ट कर सकता है। फर्स्ट कॉलबैक इज ऑलवेज फॉर सक्सेस, सेकंड इज फॉर एरर। बट हम ऐसे यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कॉलबैक जैसा अपने प्रॉमिस भी चेनिंग होता है। चेनिंग में बताया नहीं, आपको बताऊंगा, फंक्शन चेनिंग और प्रॉमिस चेनिंग। चेनिंग क्या होता है, जैसे यहाँ पे देन है और डॉट कैच था यहाँ पे, याद है ये किस तरीके से कैच यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कॉमा नहीं है, देखो ये देन कैसे हो रहा है, यहाँ पे डॉट है, ये सब मैं निकाल देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये देन है और ये कैच है, ठीक है। ये दो मेथड कैसे कॉल हो रहा है, देखो, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट डॉट देन डॉट कैच। तो डॉट डॉट करके जब एक्सेस करते हैं हम, वो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते थे, याद है, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, ये सुनो। बट यहाँ पे देखो फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं डॉट कन्वेंशन से, बट वो कैसे पॉसिबल है वो मैं बताऊंगा बाद में। इसको बोलते हैं फंक्शन चेनिंग, राइट। तो कितना भी देन हो सकता है, ये देन सपोज यहाँ पे प्रॉमिस बहुत सारे है तो यहाँ पे मल्टीपल देन भी आ सकता है, ऐसा, ठीक है, मल्टीपल देन आ सकता है। बट स्पेशली हम मल्टीपल कैच यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी एरर आता है तो इट विल बी कैच बाय द कैच मेथड। यहाँ पे भी सपोज ये एक प्रॉमिस का देन है, ये दूसरे प्रॉमिस का देन है, ये तीसरे प्रॉमिस का देन है, बट इसी में से किसी में भी एरर आता है तो ये डायरेक्टली यहाँ पर स्विच हो जाएगा रादर देन एग्जीक्यूटिंग दिस देन। क्लियर। Yes, sir. Catch is used only for errors. एरर, कहीं पे भी एरर आएगा तो वो एक ही बार एरर दिखा देगा, आगे एग्जीक्यूशन नहीं करना है ना। ओके, तो ये देन डॉट कैच, देन कॉमा कैच नहीं है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था देन के अंदर एक कॉलबैक कॉमा दूसरा कॉलबैक, ये कॉमा नहीं है। देन एंड कैच आर कॉलबैक इज द फंक्शन चेनिंग थ्रू वी आर एक्सेसिंग थ्रू फंक्शन चेनिंग। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम डॉट अनदर मेथड नेम, दिस इज कॉल्ड फंक्शन चेनिंग। ओके, सो नाउ सक्सेस की केस में यहाँ पे, एरर की केस में यहाँ पे। सो इज इट क्लियर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी कोड लिखूंगा देन वी कैन एक्सेस इट। रिजल्ट के अंदर जो भी लिखूंगा वो सक्सेस में देन के अंदर एक्सेस होगा, एंड रिजेक्ट के अंदर कुछ भी लिखूंगा तो ये कहाँ पे एक्सेस होगा, कैच के अंदर। इतना क्लियर है। प्रॉमिस Yes, कैसे sir. हम डिफाइन करते हैं, Yes, sir. प्रॉमिस क्रिएट कैसे करते हैं, एज एन प्रॉमिस का एक इंस्टेंस बनाते और ऑब्जेक्ट बनाते, एंड इसके अंदर अपने रिजल्ट एंड रिजेक्ट हम पास करते हैं, राइट। अभी सपोज मैं ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐसे स्टोर नहीं करूंगा, देन डायरेक्टली कैसे यूज करूंगा ना, न्यू प्रॉमिस यहाँ पे डॉट, डायरेक्ट ऐसे भी यूज कर सकता हूँ। मैंने बताया था कि ये प्रॉमिस डॉट देन
ठीक है, डॉट कैच, ये देखो प्रॉमिस चेनिंग, सॉरी इसमें क्या होता है कॉल बैक, अरे यार फंक्शन चेनिंग, इसको बोलते हैं फंक्शन चेनिंग। तो न्यू प्रॉमिस डॉट देन डॉट कैच, ऐसे डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूँ, राइट। बट इसको ये जब इंस्टेंस क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ऑब्जेक्ट डॉट देन डॉट कैच, ऐसे कर सकता हूँ मैं। देखो ऐसे मैं फिर से रिवर्ट कर देता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ मैं, ये प्रॉमिस में यहाँ पे हटा देता हूँ, खाली यहाँ पे डॉट देन कर देता हूँ, तो अभी ये काम करेगा। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट देन डॉट कैच, डायरेक्ट, मैं कोई वेरिएबल में स्टोर नहीं किया, तो भी ये काम कर रहा है सक्सेस। यहाँ पे 1 दिया, तो ये यहाँ पे जो भी पास करता हूँ इट विल बी कैच बाय। अभी ये जो फंक्शन चेनिंग है ना, मैंने ऑब्जेक्ट चेनिंग तो बताया था कि ऑब्जेक्ट एक्सेस करने के लिए एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा, दूसरा के अंदर तीसरा होगा, तो कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट कन्वेंशन से या स्क्वायर ब्रैकेट में, वो बताया था मैंने आपको। बट फंक्शन चेनिंग कैसे बनता है, और स्पेशली यहाँ पे फंक्शन चेनिंग कैसे बनता है, ये फंक्शन, ये चेनिंग कैसे बन रहा है, स्पेशली ये ऑब्जेक्ट के ऊपर बनता है। रिमेंबर ऑब्जेक्ट मींस दिस इज ए कंस्ट्रक्टर फंक्शन, दिस इज ऑब्जेक्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्टर फंक्शन प्रॉमिस, राइट। देन उसके ऊपर कोई भी मेथड का चेनिंग हम कर सकते हैं, किस तरीके से ना, ऑब्जेक्ट ही बनता है अंदर, कैसे मैं बताऊंगा, थ्रो दिस कीवर्ड याद है, उसके थ्रू मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना है। देखो हम ये ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो उसको एक वेरिएबल में डायरेक्ट स्टोर ऐसे कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और हम एक वेरिएबल में स्टोर करके फिर बाद में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेट p इक्वल टू न्यू प्रॉमिस देन p डॉट देन, और इसके बीच में सपोज मुझे कुछ और भी लिखना है, जैसे कंसोल मैं लिख सकता हूँ, देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे सपोज मैं लिखना चाहता हूँ दिस इज इंटरवल, तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। देखो दिस इज इंटरवल कॉल हुआ, मतलब इसका मतलब क्या है, मैं प्रॉमिस यहाँ पे क्रिएट किया और इसको कहीं भी यूज कर सकता हूँ, इसमें कितना भी कोड बीच में लिखना है मैं लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ भी लिख सकता हूँ, बट बाद में वो प्रॉमिस को कभी भी यूज कर सकता हूँ मैं, राइट। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा उसको कॉल बैक के अंदर लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो प्रॉमिस इज मोर इजियर देन कॉल बैक, राइट। तो अभी हम क्या देखेंगे, जो हमने जियो लोकेशन एपीआई किए थे ना यूजिंग कॉल बैक, उसको थ्रो प्रॉमिस करना है अपने को, मेरे को बनाना है, ओके। अब मैंने बताया था आपको क्या, कि जो भी रेस्पॉन्स रिजॉल्व के अंदर जो भी चीज पास करेंगे वो कहाँ पे मिलेगा मुझे, सक्सेस देन में मिल जाएगा, राइट। देन में, यस। हाँ, तो आपका जो पुराना कोड था उसको हम देखते हैं यहाँ पर जाके, प्रॉमिस, ठीक है। ये प्रॉमिस बना है, प्रॉमिस के अंदर मैंने क्या किया, जियो लोकेशन एपीआई को लिखा, किस तरीके से लिख रहा हूँ, अभी इफ एल्स भूल जाओ पूरा, ठीक है। अब ये एम्प्टी कॉलबैक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, राइट। इसके अंदर मैं जियो लोकेशन की कोड डाला, राइट। तो मैंने जियो लोकेशन पहले क्या बताया था आपको, दो पैरामीटर एक्सेस करता है, वन इज फॉर सक्सेस कॉलबैक, अनदर इज एरर कॉलबैक। बट सक्सेस कॉलबैक के अंदर आपको क्या मिलता है, हाँ, एक सक्सेस मिलता है, या यहाँ पे जो आपने लिखते हैं POS डेटा, पोजीशन डेटा, ऐसा मिल रहा था। तो पोजीशन डेटा वो कॉलबैक में पास होता है, और इसको हम क्या करेंगे, रिजल्व के अंदर पास कर देंगे, तो आपने को मिल जाएगा। सेम यहाँ पे सपोज एरर मिलता था ARR, एंड यहाँ पे मैं ARR रिजेक्ट के अंदर पास कर दूंगा, तो ये मुझे कब एरर में मिल जाएगा। अभी ये प्रॉमिस बना दिया मैंने, राइट। अब ये प्रॉमिस बना दिया, अभी मैं ये प्रॉमिस डॉट करके सक्सेस में जो मिलने वाला है, तो ये मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, एरर में जो मिलेगा मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। तो देखते, अरे जा ना भाई, अब मैं अलाउ किया, अब देखो सक्सेस आया, जियो लोकेशन की कोड, राइट। कहाँ पे प्रिंट हुआ, इधर प्रिंट हो रहा है, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देता हूँ कुछ,
सक्सेस, इसके बाद यहाँ पे डॉलर कॉलर एसेस, ठीक है। और यहाँ पे एरर की प्लेस में मैं सेम यही कॉपी पेस्ट करता हूँ, खाली एरर डाल दूंगा यहाँ पर। क्या डालूंगा? एरर। तो आपको पता चला यहाँ से प्रिंट हो रहा है रादर देन ऊपर ऑब्जेक्ट से। देखा, सक्सेस के अंदर आपका ये ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ, बट ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए कोऑर्डिनेट COORDS डॉट लैटिट्यूड। मिला? सक्सेस में लैटिट्यूड प्रिंट हो रहा है, एरर में एरर ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। एरर में क्या पास होगा? जो भी एरर वो भेज रहा होगा वो प्रिंट होगा। सपोज मैं ब्लॉक कर दिया तो एरर ऑब्जेक्ट, ये एरर ऑब्जेक्ट मिल रहा है हमको, यस और नो? Yes, sir. राइट। तो कैसे हम जियो लोकेशन एपीआई को मैं एरर और रिजॉल्व रिजेक्ट के अंदर मैंने सेट किया, देख पता चला आपको? यस और नो? Yes. हमको Yes, sir. सक्सेस, इसमें सक्सेस एंड कॉल एरर कॉलबैक अलग अलग एक्सेप्ट करता है, बट हमको रिजल्ट एंड रिजेक्ट के अंदर जो डेटा पास करना है उसके अंदर खाली पास कर देंगे तो हम बाहर एक्सेस कर पाएंगे इजीली, राइट। तो प्रॉमिस इज मोर इजियर देन कॉलबैक, यस और नो? Yes, sir. ओके। तो इसमें कोई डाउट है आपको? नो सर। अभी मल्टीपल चेनिंग हम कल पढ़ेंगे, चेनिंग ऑफ मल्टीपल प्रॉमिसेस। इसमें क्या है कि ऐसे मल्टीपल प्रॉमिस होगा तो भी मैं है ना, जैसे यहाँ पे एक ही प्रॉमिस है, राइट। ऐसे मैं मल्टीपल प्रॉमिस क्रिएट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ मैं, P1 P2 P3 ऐसे कुछ भी कर सकता हूँ, यस और नो? Yes. बट हमको Yes. इसके लिए चेनिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक प्रॉमिस के अंदर दूसरा प्रॉमिस होना चाहिए, दूसरा प्रॉमिस के अंदर तीसरा प्रॉमिस होना चाहिए, राइट, ताकि हम चेनिंग के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे, जो कल मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो प्रॉमिस कैसे वहां पे जब भी रिटर्न करना है, फिर मैं बाहर अपने को कभी भी यूज करना तो कर ही सकते हैं, इट इज नॉट ए बिग डील। ऐसा नहीं कि इसी के अंदर ही हम कॉल पे इसके अंदर ही यूज करना रहेगा, नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस, राइट। सो प्रॉमिस चेनिंग कल पढ़ेंगे, फिर प्रॉमिस का 2-3 स्टेटस हम पढ़ेंगे, फिर एसिंक अवेट इज द इजीएस्ट वे, वो भी हम पढ़ेंगे, प्रॉमिस ऑल, प्रॉमिस रेस। So till now anybody has any concern, any doubt? प्रॉमिस कैसे काम करता है, कॉलबैक कैसे काम करता है, राइट। कभी भी प्रॉमिस क्रिएट करेंगे तो वो प्रॉमिस कॉलबैक एक्सेस करता है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज कोड नहीं लिख पाओगे। और हमेशा रिजेक्ट, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट दो, या कोई भी दो पैरामीटर होता है, फर्स्ट पैरामीटर इज ऑलवेज फॉर सक्सेस, सेकंड पैरामीटर इज ऑलवेज फॉर एरर, ओके। एंड ये जो दो कॉलबैक पास हो रहा है यहाँ पे, ये जियो लोकेशन गेट कर, ये उसका वो मेथड का प्रॉपर्टी है, ये अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग हो सकता है, राइट। है ना, तो अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग मेथड में अलग अलग पैरामीटर हो सकता है, राइट। इसमें जैसे दो पैरामीटर सक्सेस एरर प्रोवाइड करता है, तो हमको वो रिजल्ट रिजेक्ट इसके अंदर रख देने का, तो वो अपने को बाहर मिल जाएगा। ऐसे सपोज और कोई टाइप का मेथड होगा तो वो एक्सेप्ट कुछ और करता होगा, बट हमको इस तरीके से सेट करना है कि जो सक्सेस मैसेज जहाँ पे वो प्रिंट करने जाता होगा एसिंक्रोनस कोड, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम रिजल्ट के अंदर पास करना है, और रिजेक्ट के अंदर जो भी एरर रिलेटेड पास करता होगा वो मेथड एसिंक्रोनस कोड, तो एरर के अंदर पास करना होगा, रिजेक्ट के अंदर पास करना है, या सेकंड पैरामीटर के अंदर।
फिर वो ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर कोई और कोड लिखना तो लिख सकते हैं बट बाद में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये हमको हेल्प कहाँ करता है, अगेन मैं बोल देता हूँ, इफ यू वांट टू यूज द डेटा ऑफ, जैसे मैंने ये डेटा कहीं और यूज करना चाहता हूँ, जैसे ये प्रिंट किया फिर कुछ मैसेज लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, राइट, कि आई एम लोकेटेड एट, ऐसा कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ, राइट, आई एम लोकेटेड एट दिस लैटिट्यूड, ऐसे सपोज प्रिंट करना चाहोगे, वो बाद में तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो कॉलबैक के अंदर ही करना पड़ेगा हमको। क्लियर? अलाउ, जैसे रेस्पॉन्स आएगा उसके बाद जाके वो कॉल करेगा, देखो आई एम लोकेटेड एट दिस, तो ये पहले प्रिंट नहीं हो जाएगा, है ना। यहाँ पे सपोज और कुछ कोड लिखा मैंने, कुछ भी लिखा यहाँ पर, राइट, तो इट विल एग्जीक्यूट विदाउट हेजिटेशन, ऐसा नहीं कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में मैं हमको इसको यूज करना है तो मैं कर ही सकते। क्लियर? चलो, so we'll continue promise tomorrow, then events, then modular structure and class, 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। और ठीक है, और मीनवाइल आपका ऑटोमेशन टेस्टिंग का कुछ क्लास होगा जो बेसिक चीजें बताएंगे आपको, उसके लिए आज मेरे मीटिंग है, तो कोई और ऑटोमेशन वाले आएंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्यूए क्या होता है, टेस्टिंग क्या होता है, वगैरह वगैरह थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो सर बढ़ जो जाओ। असाइनमेंट बनाया था उसकी मार्किंग वो इंटरव्यू में कुछ होगा क्या? हाँ, वो उसका? उसमें वो जो मार्किंग दिया होगा ना उन लोगों ने, वो यस इंटरव्यू सर। टाइम भी वो ऐड करेंगे हम, कि इसका असाइनमेंट ओके कम है और इंटरव्यू में अच्छा किया तो उसका एवरेज निकलेगा, ओके सर। तो असाइनमेंट का इम्पोर्टेंस तो है ही। ओके, चलो कंक्लूड करते हैं। सर एक और डाउट था। सॉरी। सर एक और मतलब क्वेरी थी, मेरे को पूछना था सर, जो इंटरव्यू